Hello friends, welcome to our Tutors. Now this is Drishti Bhartiya. Let us we talk about April 2021 related current affairs. So guys, this is very most important topic for exams like UPSC, MPPSC, SI, SSC, Railway, CGL, CJ, SSCGL and other competitive examination point of view. So guys, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, so please subscribe my channel, like this video and also share this video with your friends and loved ones. So guys, let us we talk about 8 April 2021 related current affairs. But before starting this, let us we talk about some important news headlines related to 8th of April 2021. So today's first important news headline is former Union Minister of Gujarat, MLA Digvijay Singh Zala passed away. Former Union Environment Minister and an MLA from Wankaner in Gujarat, Digvijay Singh Zala has passed away. The veteran Congress leader became the first Environment Minister of India under the then Prime Minister Indira Gandhi from 1982 to 1984. हमें पता होना चाहिए कि पूर्व केंद्रीय और गुजरात के विधायक दिग्विजय सिंह झाला का निधन हुआ है. पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और गुजरात के वांकनेर से विधायक दिग्विजय सिंह झाला का निधन हो गया है. अनुभवी कांग्रेस नेता 1982 से 1984 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तहत भारत के पहले पर्यावरण मंत्री बने थे. इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है दिग्विजय सिंह झाला. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज हेडलाइन ऑफ टुडेज इज Justice N.V. Raman to assume charge as next CJI. The senior-most Supreme Court Judge Justice Nathulapathy Venkata Raman has been appointed as the next Chief Justice of India. Justice Raman would succeeded incumbent CJI Sharad Arvind Bobde to take over the 48th CJI. He would assume charge of the officer from April 24, 2021 till August 26, 2022. हमें पता होना चाहिए कि न्यायमूर्ति N.V. रमन संभालेंगे अगले सिविल जज ऑफ इंडिया का पदभार. सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस नुतलपाटी वेंकट रमन को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है. न्यायमूर्ति रमन 48th CJI के रूप में CJI शरद अरविंद बोवड़े से पदभार ग्रहण करेंगे. वह 24 अप्रैल 2021 से 26 अगस्त 2022 तक कार्यकाल का पदभार ग्रहण करेंगे. इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज हेडलाइन ऑफ टुडेज इज इंडिया कंप्लीट्स आर्क ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज NJ&K. The construction of the arc of the world's highest railway bridge that soars 359 meters above the bed of Chenab River in Jammu and Kashmir was completed. The 1.3 kilometer long bridge aims to boost connectivity to the Kashmir Valley and it is being constructed at a cost of 1486 crore as a part of the Udhampur Srinagar Baramulla Railway Link USBRL प्रोजेक्ट. इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है कि जम्मू और कश्मीर में बनेगा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज. जम्मू और कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का आर्क, जिसकी ऊंचाई चिनाब नदी के तल से 359 मीटर है, उसका निर्माण पूरा हो गया है. 3.1 किलोमीटर लंबे पुल का उद्देश्य कश्मीरी घाटी से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है. इसका निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेलवे लिंक USBRL परियोजना के हिस्से के रूप में 1486 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइन ऑफ टुडेज इज DRDO develops advanced shaft technology to safeguard naval ships. The Defense Research and Development Organization DRDO has developed an advanced shaft technology to safeguard naval ships against missile attack. The development of advanced shaft technology by the DRDO lab is another step towards आत्मनिर्भर भारत. DRDO ने नौसेना के जहाज की सुरक्षा के लिए विकसित की एडवांस शैफ्ट टेक्नोलॉजी रक्षा अनुसंधान
और विकास संगठन DRDO ने मिसाइल हमलों के खिलाफ नौसेना के जहाज़ों की सुरक्षा के लिए उन्नत चैफ टेक्नोलॉजी और चाफ टेक्नोलॉजी विकसित की है। DRDO लैब द्वारा एडवांस चैफ टेक्नोलॉजी का विकास आत्मनिर्भर भारत की एक और कदम बढ़ाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन ऑफ टुडेज इज कार्ल बिल्ड अपॉइंटेड WHO Special Envoy for ACT Accelerator. Tedros Adhanom Ghebreyesus, the Director General of the World Health Organization or WHO, appointed Carl Bildt as WHO Special Envoy for the Access to COVID-19 Tools Accelerator or ACT Accelerator. Bildt succeeded Ngozi Onozi-Iweala and Andrew Witte in the Special Envoy role. He will help lead the collective advocacy for the ACT Accelerator in the new role, mobilizing support and resources so it can deliver against the strategy for COVID-19 2021. So, हमें पता होना चाहिए कि कार्ल बिल्ट को एक्ट एक्सेलरेटर के लिए WHO विशेष दूत नियुक्त किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम ने कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर तक पहुंच के लिए कार्ल बिल्ट को WHO के विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया है। बिल्ट विशेष दूत की भूमिका में ओनकोनोजी-इवेला और एंड्रयू विटी का स्थान लेंगे। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है कार्ल बिल्ट। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन ऑफ टुडेज इज चिंतन वैष्णव अपॉइंटेड एज मिशन डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन. Noted socio-technologist Dr. Chintan Vaishnav has been appointed as the Mission Director of Atal Innovation Mission or AIM, the government flagship initiative under Niti Aayog. Vaishnav will take over from Ramanathan Ramanan later this month. Ramanan has been leading AIM at its first mission director since June 2017. Vaishnav is currently at the Massachusetts इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और MIT US. इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि चिंतन वैष्णव बनेंगे अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निदेशक. प्रसिद्ध सामाजिक प्रौद्योगिक डॉक्टर चिंतन वैष्णव को नीति आयोग के तहत सरकार की प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन और AIM का मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है. वैष्णव इस महीने के अंत में रामनाथन रमनन के से पदभार ग्रहण करेंगे. रमनन जून 2017 से AIM के पहले मिशन निदेशक के रूप में अग्रणी है. वैष्णव वर्तमान में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT US में है. उन्होंने MIT से प्रौद्योगिकी प्रबंधन और नीति में PhD की है. इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है. So guys, now let us talk about 8th April 2021 related current affairs. So today's first question is विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? When was World Health Day was celebrated? So answer is 7th of April. Next question number 2 is विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 का विषय क्या रखा गया? What is the theme of World Health Day 2021? So answer is सभी के लिए एक स्वच्छ स्वस्थ दुनिया का निर्माण. Creating a clean, healthy world for all. Next question number 3 is किसे अटल नवाचार मिशन का निदेशक नियुक्त किया गया है? Who was appointed as the director of Atal Innovation Mission? So answer is चिंतन वैष्णव. हमें पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है. चिंतन वैष्णव अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? Who will represent India in the World Cities Culture Forum? So answer is अरविंद केजरीवाल, CM of Delhi. इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज किस संगठन ने भारतीय नौसेना के जहाजों को बचाने के लिए चैफ प्रौद्योगिकी विकसित की है? Which organization developed chaff technology to protect Indian Navy ships? So answer is DRDO. इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज
8 मिलियन से अधिक कोविड-19 टीका लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? हु बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अप्लाई मोर देन 8 मिलियन कोविड-19 वैक्सीन्स? सो आंसर इज स्टेट महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। एंड कैपिटल ऑफ स्टेट महाराष्ट्र इज मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज वियतनाम देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम? सो आंसर इज फाम मिन चिन। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज किस शहर में मतदाताओं की जागरूकता बढ़ाने के लिए 2 स्वीप ट्राम लॉन्च किए गए हैं? इन विच सिटी 2 स्वीप ट्रैम्स वर लॉन्च्ड टू इंक्रीज वोटर्स अवेयरनेस? सो आंसर इज सिटी कोलकाता। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज 9th, भारतीय रिजर्व बैंक और आरबीआई ने पॉलिसी रेपो रेट कितने प्रतिशत रखा है? व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉलिसी रेपो रेट केप्ट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? सो आंसर इज 4.0% और 4% रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज एक्ट और ACT एक्सेलरेटर के लिए WHO विशेष दूत किसे नियुक्त किया गया है? वॉज अपॉइंटेड स्पेशल एनवॉय फॉर एक्ट एक्सेलरेटर? सो आंसर इज कार्ल बिल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमें याद रखना है। कार्ल बिल्ड बिकम द WHO एनवॉय स्पेशलिस्ट फॉर कोविड-19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क रेलवे ब्रिज बना है? Which state has the highest arc railway bridge in the world? So answer is Jammu and Kashmir. Important है, हमें याद रखना है। Next question number 12 is कर्नाटक लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? Who became the new chairman of Karnataka Public Service Commission? So answer is शिवा शंकरप्पा S मनीलैंडर। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। शिव शंकरप्पा S साहूकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज नासा की चंद्रा वेधशाला ने किस ग्रह पर एक्सरे किरणों के उत्सर्जन का पता लगाया है? नासा चंद्राज ऑब्जर्वेटरी डिटेक्टेड एमिशन ऑफ एक्स रेज ऑन विच प्लैनेट? सो आंसर इज प्लैनेट यूरेनस। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? Which country will presided over the 17th BIMSTEC ministerial meeting? So answer is country श्रीलंका। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज भारत का 48th मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? Who was appointed as the 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नूतनपति वेंकट रमन। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नूतनपति वेंकट रमन will serve as 48th Chief Justice of India. Next question number 16 is launched पुस्तक WhatsApp with me के लेखक कौन है? Who is the author of the launched book WhatsApp with me? So answer is टिस्का चोपड़ा। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज फोर्ब्स की अरबपतियों की वार्षिक सूची के शीर्ष स्थान पर कौन रहे हैं? Who topped the Forbes annual list of billionaires? So answer is Jeff Bezos. Important है, हमें याद रखना है। Jeff Bezos topped the Forbes annual list of billionaires. Next question number 18 is किस राज्य के केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह झाला का निधन हुआ है? Union Minister of which state दिग्विजय सिंह झाला died? So answer is state गुजरात। Important है, हमें याद रखना है। And capital of state गुजरात is गांधीनगर। Next question number 19 is तुलसी समुदाय और तुत्सी समुदाय के विरुद्ध हुए जनसंहार पर विचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? When was the International Day of Reflections on the Massacre against the Tutsi community celebrated? So answer is 7th of April. Important है, हमें याद रखना है। तुत्सी कम्युनिटी के खिलाफ जनसंहार पर विचार जो है 7 अप्रैल को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज किस राज्य के हापुस आम को GIT टैग प्रदान किया गया है? विच स्टेट्स हापुस मैंगो वॉज अवॉर्डेड GI टैग? सो आंसर इज स्टेट महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 इज
ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और एटमा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और एटमा? सो आंसर इज अंशुमन सिंघानिया। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 इज भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसिव कौन सा बना है? Which became India's first 14 lane expressway? So answer is Delhi Meerut और Delhi Meerut एक्सप्रेसवे। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 इज भारत के आर्थिक मामलों के विभाग DEA का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु वाज अपॉइंटेड द न्यू सेक्रेटरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और DEA ऑफ इंडिया? सो आंसर इज अजय सेठ। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 इज भारत के नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो वाज अपॉइंटेड एज द न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। सो आंसर इज तरुण बजाज। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 इज स्कूली छात्रों को मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? विच बिकेम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू गिव अ मंथली माइक्रो स्कॉलरशिप टू स्कूल स्टूडेंट्स? सो आंसर इज स्टेट सिक्किम। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। एंड कैपिटल ऑफ स्टेट सिक्किम इज गंगटोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 इज गैबोन देश में भारत के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द कंट्री ऑफ गैबोन? सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रामकरण वर्मा इज एन इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री गैबोन। हमें पता होना चाहिए कि रामकरण वर्मा बने हैं प्रेसिडेंट, जो कि इंडिया से है, और ये प्रेसिडेंट बने हैं गबोन कंट्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2021 से 22 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और IMF estimated the percentage of India's growth rate in the year 2021 to 22. So answer is 12.5%. इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि 12.5% जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की विकास दर लगाने का अनुमान लगाया है। सो गाइस, आई होप गाइस आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको कोई भी डाउट हो सो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या किसी और टॉपिक को पढ़ना हो सो आप हमसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और अब स्टडी मटेरियल से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वायरी हो तो आप टेलीग्राम से भी हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। सो आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 9424570979। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सपोर्ट इज अवर पावर। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।